Hello students, good morning. Today we are going to start new lesson and that is polynomial. At the same level it is given in standard 10 also. Okay, so second lesson in standard 10 also polynomial, and it is completely based on the concept of standard 9 polynomial. Okay, so that is very important, and marks wise also it is so important. Before going to the exercise or practice of this lesson, we just first of all go through the important terms, important words. Okay, we first of all understand that by example also. Okay, many are familiar to you. Okay, and some may be new also. So just go through all of them. First of all, variable. Variable is nothing but a symbol, unknown. If any unknown is there, many times you remember that you suppose x in many sums. So at that time x is nothing but a variable. You don't know value of x, but it can assume any value. Okay, so variable is a symbol like x, y, z, p, q, r, a, b, c, whatever may be, mostly supposed in small letter, not in capital, and which can take any value. Now exponent or degree, that is very familiar terms. Okay, you might know about all this. Repetition of variable, that is called exponent or degree. Now exponent and degree are almost synonym. Suppose x square is there, then 2 is a degree of x. Okay, so 2 is a exponent or degree in term x square. Suppose x cube is given, then 3 is a degree. Okay, so rest 2, whatever given in rest 2, that is nothing but an exponent or degree. Then coefficient. Coefficient is nothing but a number which is in product of variable. Number which is in product of, suppose 2x is given, then 2 is a coefficient. Here I take an example 5x. So 5 is coefficient of x. You understand? It's starting whatever number is given ahead of variable. That is called coefficient. Now constant. Any fixed number as a term is called constant. Any fixed number means either 2, 3, 5, whatever number, but as a term, not just like coefficient. It is not in the multiplication of anything. Okay, so that is called constant. Okay, suppose 5, so 5 is called constant. 0, your roll number, your marks, they are constant. Okay, but 7x, then 7 is not constant. Okay, because it is there as a coefficient only. Okay, now term. What is the term? So any expression up to next plus or minus sign is called term. Understand well. Many times many students confuse regarding this term. In particularly polynomial, what is the meaning of term? Term is a any number, not only number, it may include variable also, up to plus or minus sign. Okay, whenever plus or minus sign comes, from there new terms start. Okay, and it longer up to next plus or minus sign. Okay, so plus or minus sign divide terms different. Okay, suppose 2x plus 1. Suppose any polynomial given 2x plus 1, then 2x and 1 are terms only. Okay, and 1 is a constant term here, and 2x is not constant term, that is variable. Okay, so you understand what is the term. Suppose 3x square plus 5x plus 6, like there is given, then there are 3 terms. Okay, so term is nothing but any expression up to plus or minus sign. After plus or minus sign, next term starts. Expression, any term or combination of terms is called expression. Now expression is nothing but a combination of many terms. It may be of one term also, but more generally it is combination of more than one terms. Okay, so that is generally called expression. Suppose example given x square plus 2 x raised to half. X raised to half means square root 2 root x minus 5. So that is called expression. Okay, there is a degree half, x raised to half only. Okay, so you understand. So that is called expression. Now polynomial. If degree of all terms are whole numbers,
then that expression is called polynomial. Now you understand what is the difference between expression and polynomial? Almost they are same. But in expression, degree may be any. It may be minus, it may be fraction. But in polynomial, degree must be whole number only. Degree must be whole number only. Then and then only that expression is called polynomial. Otherwise not polynomial. So you understand? Here look at, I have taken example x square minus 2x plus 1. Here degree of x 2. Then in second term degree of x is 1. Then in third term degree of x is 0. X is not there means its degree is 0. So all degrees are from whole number. Whole number means 0, 1, 2, 3, 4, 5, okay, so and so up to infinite, they are called whole number. So all positive integers as well as 0, okay. And in expression you can see there is a x square plus 2x raised to 1 by 2. So that is only expression, not polynomial. I can say all expressions are not polynomial, but all polynomial are expressions, obviously, because polynomial is a one type of expression, okay. So all polynomial may be expression, but all expressions cannot be polynomial, okay. Now next, equation. If polynomial is equalized to any value, then it is called equation. Or left and right, both sides containing polynomial is called equation. So you understand? Equal to should be there and something should be at right side. Then and then only that polynomial becomes equation. Otherwise it remains polynomials only. Okay. So equation means if something is equalized with this polynomial equal to 1, equal to 2, equal to ax, equal to x square, whatever might be, but something should be there after equal to, means both sides should be there, left as well as right. Then and then only that is called equation, okay. And only equation can be solved, polynomial cannot be solved. Many times student find out that x or y means variables value from polynomial only. It is not possible, because if you don't know what is the value of that polynomial, then how can you solve that equation, okay. Suppose here given x square minus 4x equal to 1, so that is equation, but only x square minus 4x is not equation, that is only polynomial. So you understand, okay. So both sides should be there to say whether is it a equation or not, okay. So you understand difference between expression and polynomial. Now you are knowing difference between polynomial and equation. You understand? Polynomial and equation. If something is there at right side, then it is equation, otherwise polynomial. Like terms. That is very common terms. Like terms means what? Terms with same variable and degree. Variable is same and degree also same. Then but coefficient be different, mostly coefficient different, otherwise they are called equal terms. But here we are talking about like terms, so variable and degree must be equal. Suppose 5x square and minus x square y are like terms. In both ones x square y given, coefficient are obviously different. In first one 5 and second one it is minus 1, so obviously they are different. But after coefficient everything is equal. After coefficient, except coefficient, everything is equal, then these types of terms are called like terms. Next, unlike terms. Terms with different variable and or different degree are called unlike terms. देखो वेरिएबल डिफरेंट हो सकता है और डिग्री भी डिफरेंट हो सकती है, तो नहीं हो सकती, लेकिन समथिंग मस्ट बी डिफरेंट. Except coefficient, something should be different, okay. तो आप देख सकते हैं 2x क्यूब एंड 5x स्क्वायर, 2 एंड 5 तो डिफरेंट होते ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक टर्म में भी होते हैं. लेकिन यहाँ देख लो, यहाँ x स्क्वायर है तो वहाँ x क्यूब है, और सेकंड लाइन में भी देखो एक जगह x स्क्वायर है दूसरे में y स्क्वायर है. तो समझ गया, डिग्री डिफरेंट है तो भी अनलाइक टर्म्स.
वेरिएबल डिफरेंट है तो भी अनलाइक टर्म्स, दोनों डिफरेंट है तो भी अनलाइक टर्म्स। समझ गए? तो मतलब जो लाइक नहीं है वो अनलाइक टर्म्स है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने जो ब्रैकेट में लिखी है वो खास याद रखना, ओनली लाइक टर्म्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक टर्म्स कैन नॉट बी डन। समझ गए आप? लाइक टर्म्स का ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है, अनलाइक टर्म्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता नहीं है, वो खास याद रखना। और इफ यू ट्राई टू ऐड देम और सब्ट्रैक्ट देम, व्हाट कैन यू राइट? नथिंग। सपोज मैं ट्राई करूँ अनलाइक टर्म्स में, मैंने एग्जांपल दिया, देखो 2x³ प्लस 5x², मैं क्या लिखूँ? मैं 7x² लिखूँ या 7x³ लिखूँ? नथिंग, नॉट पॉसिबल। ऐसे दूसरी लाइन में लिखा है 2x² एंड y², तो मैं क्या ऐड करूँ इसको? ओनली प्लस की साइन ही रखूँगा, बीच में कुछ होगा नहीं कंबाइन। ओके, so they cannot be added or subtracted. Now constant polynomial, that is very simple. All number are constant polynomials. polynomial का मतलब ऐसे नहीं करना कि इसमें वेरिएबल होना ही चाहिए, x होना चाहिए, y होना चाहिए, मतलब अननोन होना ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है। कांस्टेंट पोलिनोमियल नंबर भी हो सकता है, जैसे 2, 5, -1, 1000, lakh, -5। समझ गए? तो ये सारे नंबर भी है, लेकिन इसको कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं, ओनली पोलिनोमियल नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है। जीरो पोलिनोमियल, जीरो इटसेल्फ इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल मतलब जीरो, ओके, वैल्यू जीरो, दैट इज कॉल्ड जीरो। नाउ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री ऑफ टर्म इन अ पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। देखो आप एक पोलिनोमियल में मान लो कि 3 टर्म है, देखो मैंने एग्जांपल दिया है 2x³ -3x² + 1। इसमें फर्स्ट टर्म की डिग्री 3 है, सेकंड की 2 है और लास्ट की 0 है। लास्ट जो है ना 1, इसकी 0 है। तो इसमें सबसे बिगेस्ट डिग्री कौन सी है? 3। तो पोलिनोमियल की डिग्री 3 मानी जाती है। समझ गए? तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज नथिंग बट डिग्री ऑफ हाईएस्ट टर्म, या तो डिग्री ऑफ टर्म हैविंग हाईएस्ट डिग्री। ओके, सो हाईएस्ट डिग्री वो ही डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ओके, नाउ जीरो ऑफ पोलिनोमियल, ये खास देखना, मेनी स्टूडेंट में कंफ्यूज हियर। जीरो ऑफ पोलिनोमियल मीन्स नॉट वैल्यू जीरो। जीरो ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या? देखो मैंने क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल which makes value of polynomial 0 is called zero of polynomial। मान लो कि मेरे पास x - 1 है, x - 1, अगर मैं x की जगह 1 रखूँ तो क्या होगा? 1 - 1 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल। मैं ऐसे बोल सकता हूँ, देखो 1 इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल। क्यों? मैंने एग्जाम्पल यहाँ नहीं दिया, मैं ओरली बोल रहा हूँ, थोड़ा सुनो। तो थोड़े सुन के आप समझ जाओ तो शायद लिखने की ज़रूरत नहीं रही। मैं भूल गया हूँ, एक्चुअली एक एग्जांपल की ज़रूरत थी। मान लो कि x - 1 ऐसे एक पॉलिनोमियल है, मैं बोलूँ कि x की एक ऐसी वैल्यू आप ढूंढ निकालो जैसे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बने, तो आप x की जगह 1 रखोगे तो बनेगा क्या? x - 1 = 1 - 1 = 0। तो क्या रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बनी? तो x की वैल्यू 0 रखने से। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो समझ गए, 0 मीन्स नॉट दैट 0, हम जो मानते वो 0 नहीं, लेकिन ऐसी वैल्यू जो रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बनती है, इसको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसको रूट भी बोलते हैं। एक्चुअली 0 ये लोगों ने नेम दिया ना, इसकी वजह से स्टूडेंट कन्फ्यूज बहुत होते हैं। 0 का मतलब वो समझ जाते हैं कि 0 ही होना चाहिए, तो हमारा सम ही नहीं बनता, एवरी टाइम 0 ही आंसर आएगा। लेकिन समझ लेना 0 मतलब 5 भी 0 हो सकता है, 8 भी 0 पोलिनोमियल हो सकता है, -6 भी 0 हो सकता है, 1 lakh भी 0 पोलिनोमियल हो सकता है। तो इतना तो याद रखो कि 0 पोलिनोमियल इज नथिंग 0 बट इट मे बी एनी वैल्यू विच मेक वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 0। खुद 0 नहीं है लेकिन दूसरे को 0 बना रहे हैं, ऐसी x की या तो कोई भी वेरिएबल की वैल्यू। और दूसरी एक बात भी मुझे याद आई तो साथ में बोल दूँ, मोस्टली हमारा वेरिएबल x ही होता है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है। y का a b आपको जो पसंद है इसका भी बना सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक में मोस्टली वो लोग
एक्स वाला पॉलिनोमियल देते हैं, ओके। और इसको वो लोग पी ऑफ एक्स से लिखते हैं, पी बाद में ब्रैकेट में एक्स, मतलब इसको पी ऑफ एक्स बोलते हैं। पी ऑफ एक्स मतलब क्या है, पॉलिनोमियल ऑन एक्स। सपोज वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 ऐसा कुछ लिखा है तो मैं इसको पी ऑफ वाई लिख सकता हूँ, क्योंकि पॉलिनोमियल ऑन वाई, पी कैपिटल, ओके। नाउ नेक्स्ट, फैक्टर पॉलिनोमियल। फैक्टर पॉलिनोमियल, फैक्टर मत का मतलब आप समझते हो। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दे दूँ। इससे पहले मैं बोलूँ 8 का फैक्टर निकालो, तो आप बोले सर 8 का फैक्टर 1 है, 2 है, 4 है और 8 खुद है। तो मतलब फैक्टर का मतलब आप समझ गए। ऐसे कौन से नंबर है जिससे वो गिवन नंबर को आप डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि रिमाइंडर 0 रहता है, समझ गए। तो रिमाइंडर 0 रहे ऐसे डिवाइड करने वाला नंबर, वो ही फैक्टर। तो यहाँ भी ऐसी बात है, फैक्टर पॉलिनोमियल मतलब क्या, इफ एनी पॉलिनोमियल डिवाइड द अदर पॉलिनोमियल सच दैट रिमाइंडर बिकम 0, देन फर्स्ट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड फैक्टर पॉलिनोमियल ऑफ अदर और गिवन पॉलिनोमियल। वेरी सिंपल। जैसे नंबर की बात आपको पता है, ऐसे यहाँ पॉलिनोमियल की बात है, ओके। तो मतलब समझ जाओ ना, जो डिवाइड कर सके, विदाउट रिमाइंडर डिवाइड कर सके ऐसे नंबर को या तो ऐसे पॉलिनोमियल को फैक्टर बोलते हैं। नाउ एक्सपांशन। एक्सपांशन इज अ वन टाइप ऑफ प्रोसेस। व्हाट इज इट, प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड। तो एक्सपांशन का मतलब समझ लो ना, मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोडक्ट बोथ आर सिनोनिम्स। समझ गए, प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ हम नंबर की बात नहीं करेंगे, बात नंबर जैसी है। मान लो कि मैं 2 3 जा 6 करूँ तो मैंने एक्सपेंशन ही किया, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। 5 10 जा 50 करूँ तो मैंने एक्सपेंशन ही किया, गलत नहीं है। लेकिन मोस्टली यह टर्म हम कहाँ यूज़ करते हैं, पॉलिनोमियल के लिए, ओनली नंबर के लिए नहीं, ओके। तो देखो मैंने x मल्टीप्लाई x प्लस 1 किया, so that results x square plus x. So here I have done expansion, okay. Its verb is expand, to expand, and process is expansion, noun, okay. So you understand, so that is nothing but a expansion. Now factorization, process of showing given polynomial as a product of two or more than two polynomial is called factorization. मैं आपको पहले नंबर की बात बता दूं। मान लो कि 30 है, 30 है, तो मैं आपको अगर ऐसे लिखूं कि 2 इंटू 3 इंटू 5, 30 की जगह में लिखो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, कितना हुआ, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो मैंने जो लिखा ना वो फैक्टराइज फॉर्म लिखा है, और मैंने किया क्या, फैक्टराइजेशन। तो समझ गए, मैंने 30 को प्रोडक्ट फॉर्म में बताया, किसी नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में बताया। तो मतलब वो प्रोसेस जो मैंने की ने, वो फैक्टर्स, मैंने फैक्टर फाइंड किया, तो फैक्टर फाइंड करने की प्रोसेस वो ही फैक्टराइजेशन, ओके। तो प्रोसेस ऑफ शोइंग given polynomial as a product of two or more than two polynomial is called factorization, means process of finding factors, okay. इन थोड़ा और भी एक्सरसाइज में यूज आने वाला है, वो मैंने थोड़ा लिखा है। इफ वन फैक्टर इज नॉन देन अदर फैक्टर कैन बी फाउंड बाय डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय नॉन फैक्टर। मैं आपको और एग्जांपल दे दूँ। मान लो कि मैं बोलूँ कि 30 है, 30 का एक फैक्टर 6 है, दूसरा क्या होगा। मान लो कि आपको पता नहीं है, आपको टेबल नहीं आता, तो आप क्या करोगे, 30 को 6 से डिवाइड करोगे। ये तो सिंपल एग्जांपल हुआ। मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल दे दूँ। 105 है, 105, इसका एक फैक्टर 3 है, एक फैक्टर 3 है। मैं बोलूँ कि दूसरा फैक्टर निकालो, तो आप क्या करोगे, 105 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा ना क्वोशंट में, क्वोशंट में 35 आएगा। तो आपको पता हो गया दूसरा फैक्टर कहाँ मिला, क्वोशंट में। रिमाइंडर तो 0 ही होगा, इसको ही फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर का मतलब ही है कि रिमाइंडर 0 ही रहेगा, ओके। सो इफ वन फैक्टर इज नॉन देन अदर फैक्टर कैन बी फाउंड बाय डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय नॉन फैक्टर। नॉन फैक्टर मतलब आपको एक पता है तो बाकी के वहाँ से मिलते हैं, क्वोशंट में से, ओके। टेकिंग कॉमन इज अ वन टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन। आप कॉमन लेते हैं ना, कॉमन लेने की बात एक टाइप का फैक्टराइजेशन नहीं है, क्योंकि इन बिटवीन आप जो करते हैं ना, ब्रैकेट ओपन करने से पहले
वो कुछ नहीं रखते तो मतलब मल्टीप्लिकेशन की साइन ही होती है। ओके, एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन आर क्वाइट ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ ईच अदर। हमने ऊपर देखा था ना, एक्सपेंशन वो एक टाइप का मल्टीप्लिकेशन था, तो फैक्टराइजेशन डिवीजन ही एक टाइप का। ओके, तो दे आर क्वाइट ऑपोजिट प्रोसेस। 15 की जगह में 5 मल्टीप्लाई 3 लिखो तो ये फैक्टराइजेशन। 5 मल्टीप्लाई 3 की जगह में 15 लिखो तो वो एक्सपेंशन। समझ गए, दोनों बातें क्वाइट ऑपोजिट है कि नहीं। इन एक्सपेंशन ब्रैकेट्स आर ओपन। हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, नंबर में तो ब्रैकेट मोस्टली नहीं होते। अगर एक्सपेंशन करते हैं तो मोस्टली ब्रैकेट निकल जाते हैं। देखो ना, ऊपर मैंने एक एग्जांपल लिया है, देखो x इंटू एक्स प्लस 1, लुक हियर, सो ब्रैकेट इज रिमूव, ब्रैकेट ओपन। ओके, और फैक्टराइजेशन में क्या होगा, उल्टा बात। देखो लास्ट पैराग्राफ, सॉरी लास्ट ब्रैकेट, इन एक्सपेंशन ब्रैकेट्स आर ओपन और रिमूव्स, वेरेज इन फैक्टराइजेशन ब्रैकेट्स आर ऑब्टेन। इसमें ब्रैकेट आपको मिलता है, फैक्टराइज करो ना तो आपको लास्ट में ब्रैकेट मिलता है। मैं पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ। सो वेन एवर यू फैक्टराइज एनी पॉलिनोमियल, एट लास्ट यू विल हैव 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, सो ये हम करने वाले हैं, एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन दोनों करने वाले हैं, ये प्रोसेस, इसके रिलेटेड सम्स। ओके, नाउ टर्म्स आर आई थिंक ओवर। नाउ जस्ट लुक हियर, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल की टाइप है ना, वो अलग अलग 2 टाइप से निकाली जाती हैं। पहला लिखा मैंने अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, इसके अंदर कितनी टर्म्स है वो टर्म्स के हिसाब से आप अगर पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करो ना तो 3 टाइप बनते हैं। देखो, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ये मोनो, बाई एंड ट्राई वो लैटिन वर्ड है। मोनो का मतलब 1, बाई का मतलब 2 एंड ट्राई का मतलब 3। ओके, ऐसे टेट्रा भी होता है लेकिन यहाँ नहीं यूज होता है। टेट्रा का मतलब 4 होता है लेकिन मैथ्स में इसका नहीं होता है, साइंस में यूज होता है। तो मोनोमियल मीन्स व्हाट, polynomial containing one term only, very simple. Suppose x 2y x square 5, but nothing is there, प्लस माइनस करके अब पास में कुछ नहीं है, मतलब एक ही टर्म है। मतलब 2y में भी एक ही टर्म है और 2ny अलग अलग टर्म नहीं है, सेपरेट टर्म नहीं है। मैंने बोला था टर्म तब नहीं स्टार्ट होती है जब बीच में प्लस माइनस आता है, वो भी ब्रैकेट में के अंदर भी नहीं, सीधा ऐसे बाहर ही। ओके, तो यहाँ सारा एग्जाम्पल मोनोमियल का है। नाउ बाइनोमियल हैविंग 2 टर्म्स, एग्जाम्पल देखो x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स प्लस वाई, ये सारे में 2 टर्म्स है। देखो ऐसे ट्राइनोमियल 3 टर्म्स वाले हैं। देखो मैंने एग्जाम्पल दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स प्लस वाई माइनस 1, दे आर ट्राइनोमियल। और दूसरी टाइप है अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आप डिग्री के हिसाब से करो तो क्या होता है, तो भी 3 टाइप बनती है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक भी है। लेकिन बाई क्वाड्रेटिक वर्ड टेक्स्ट बुक में हमारे सिलेबस में कहीं पर यूज़ नहीं किया गया है, बोल सकते वो गलत नहीं है, मैंने ले लिया है बाई क्वाड्रेटिक टाइप में। देखो लीनियर पॉलिनोमियल, यहाँ हम ये नहीं देखें कितनी टर्म है, हाउ मेनी टर्म्स, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, डिग्री इज इम्पोर्टेंट हियर। तो देखो, इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, इट इज़ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर क्यों बोला जाता है पता है, आप इसका ग्राफ बनाओ तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी, कर्व नहीं मिलेगा। मैंने एग्जांपल दिया x 2x माइनस 5, ये सारा देखो इसमें डिग्री 1 ही है, x के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 डिग्री है। ऐसे 2x माइनस 5 में भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 ही है। ओके, मैंने बोला था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, बिगेस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और बिगेस्ट डिग्री ऑफ टर्म। ओके, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन कितनी टर्म है वो मत देखो यहाँ, वेदर वो एक ही टर्म है, 2 है या 2 से ज़्यादा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, डिग्री इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक 2 डिग्री वाले देखो एग्जांपल बहुत सारे लिए हैं मैंने। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 28 है, वाई स्क्वायर माइनस 5 है, वो सारे में देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है। ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 है। देखो एग्जांपल एक्स क्यूब 2x क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 1। ओके, कितनी भी टर्म ले लो लेकिन डिग्री 1, सॉरी डिग्री 3। ऐसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 4 then it is called biquadratic polynomial.
एग्जाम्पल आपके सामने है। ओके, तो आपको ऐसे याद रखना है, एक्सरसाइज 2.1 में इसके बेस पर क्वेश्चन दिया गया है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके बेस पर बहुत आएंगे। आज जो हम सारे डिस्कस कर रहे हैं ना, इसके बेस पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत फायदा होने वाला है। तो टू टाइप से हमने क्लासीफाई किया है, एक तो कितनी टर्म्स है वो देख के, और बाद में डिग्री कौन सी है वो देख के। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये देखो मैंने एक दो एग्जांपल ऐसे लिया है जिसमें सारी बात मैंने लेबल्ड की है। देखो मैंने 5x क्यूब लिया, तो 5x क्यूब में 5 क्या है, कोएफिशिएंट है, x क्या है, वेरिएबल है, 3 क्या है, डिग्री और एक्सपोनेंट है। जस्ट रिवीजन ही है, आगे जो मैंने बताया ना वो सारी बात एक साथ ली। 8 ओनली 8 है ना, इसका मतलब ऐसा समझ लो 8x⁻0 है। मान लो कि आपका रोल नंबर 5 है ना, तो आप लिख सकते हैं 5x⁻0, गलत नहीं है, क्योंकि एनीथिंग रेस टू 0 1, सो 8 1 जा 8। ओके, तो इसकी डिग्री 0 क्यों होती है, कांस्टेंट टर्म की डिग्री 0 क्यों होती है वो आपको समझना है। तो यहाँ देख लो, 8 कोएफिशिएंट है वो तो आपको पता है, x वेरिएबल है वो भी पता है, लेकिन डिग्री 0 है क्योंकि नहीं है, x नहीं है, इसका मतलब इसकी डिग्री 0 है। ओके, तो ये तीनों टर्म एक साथ आपको समझनी है, तो कोई मिक्सअप ना हो जाए इसलिए। ये रिमाइंडर थ्योरम या तो फैक्टर थ्योरम जो है ना, वो मैं अभी आपको बात नहीं करूँगा क्योंकि बाद में समझने वाले हैं। ओके, इसके बाद है 2 टाइप्स ऑफ डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक लॉन्ग डिवीजन मेथड है, हम जैसे नंबर को डिवाइड करते हैं ना, ऐसे पॉलिनोमियल को भी डिवाइड कर सकते हैं, क्वोशंट फाइंड कर सकते हैं, रिमाइंडर भी फाइंड कर सकते हैं। तो 2 मेथड है, पहली लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसका नेम के हिसाब से वो थोड़ी लॉन्ग भी है। एप्लीकेबल व्हेन डिवाइजर इज एनी पॉलिनोमियल, वहाँ मतलब ये कहीं पर भी अप्लाई होते, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन दूसरी मेथड देखो, सिंथेटिक डिवीजन मेथड, एप्लीकेबल व्हेन डिवाइजर इज अ लीनियर पॉलिनोमियल ओनली। डिवाइजर का मतलब तो पता है ना, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, जिससे जिसको डिवाइड कर रहे हैं इसको डिविडेंड बोलते हैं, और जिससे डिवाइड करते हैं बाय व्हाट, दैट इज कॉल्ड डिवाइजर। ओके, तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड है ना, वो तभी अप्लाई होती है जब डिवाइजर लीनियर पॉलिनोमियल है। मतलब मान लो कि कोई पॉलिनोमियल को आप x+1 से डिवाइड करना चाहते हो, 2x-5 से डिवाइड करना चाहते हो, x+8 से डिवाइड करना चाहते हो, तब आप ये मेथड सिंथेटिक डिवीजन मेथड, जो शॉर्ट मेथड है, लॉन्ग नहीं है, वो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसकी एक लिमिट है कि अगर डिवाइजर लीनियर नहीं हो, मतलब 2 डिग्री या 3 डिग्री वाला हो, तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड एप्लीकेबल नहीं है, ये खास याद रखना। और हमारा एक बेनिफिट है कि 9th में मोस्टली डिवाइजर, मोस्टली नहीं, ऐसे तो सारे के सारे, टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूँ, सारे के सारे डिवाइजर लीनियर ही है। तो अभी आप 9th में तो लॉन्ग डिवीजन मेथड ना सीखो ना, तो भी आप सारे सम में सिंथेटिक डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। लेकिन हम थोड़े एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लेके और लॉन्ग डिवीजन मेथड भी करेंगे, या तो कोई एक ही सम या तो कोई फ्यू सम्स दोनों मेथड से करके देखेंगे। ओके, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन मेथड 10th में काम का है, वहाँ लॉन्ग डिवीजन मेथड करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वहाँ डिवाइजर आपका क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, होगा ही, हो सकता है नहीं, बहुत सारे हैं और मोस्टली हैं। ओके, तो हम सीख लेंगे दोनों मेथड। ओके, ये भी मेथड क्या है मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको जस्ट दोनों नेम बता रहा हूँ और कब एप्लीकेबल है। लॉन्ग डिवीजन मेथड में कुछ लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, वो कभी भी अप्लाई होता है। सिंथेटिक डिवीजन मेथड की बात करो तो इसमें याद रखो कि लीनियर पॉलिनोमियल से अगर आप किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करो तो ये मेथड काम की है। अभी ये 4 टर्म्स मैंने ले लिए, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशंट एंड रिमाइंडर। क्वोशंट एंड रिमाइंडर तो आपको पता है, लेकिन डिविडेंड और डिवाइजर क्या है, तो देखो मैंने साइड में रेड लेटर से लिखा है, जिसको आप डिवाइड कर रहे हो वो डिविडेंड है, जिससे डिवाइड कर रहे हो डिवाइजर। ओके, बाय व्हाट, वो डिवाइजर बोलो, होम या तो व्हाट, किसको डिवाइड कर रहे हैं वो डिविडेंड, मतलब जो अंदर रहता है बड़ा नंबर वो डिविडेंड, और छोटा नंबर जो डिवाइड कर रहा है वो डिवाइजर। तो समझ गए, इसका पॉइंट कंटिन्यू भी है, मैं नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट पेज पर आपको ले जा रहा हूँ, तो समझ गए ये बात।
डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये आपको याद रखना है एक लॉजिक कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस, इसका सिंबल है देखो, डिविडेंड को पी ऑफ एक्स से वो बताते हैं। मैंने बताया था पी ऑफ एक्स का मतलब पॉलिनोमियल ऑन एक्स, मेन पॉलिनोमियल मतलब डिविडेंड। जी ऑफ एक्स इज नथिंग बट डिवाइजर, क्यू ऑफ एक्स इज क्वोशंट एंड आर ऑफ एक्स इज रिमाइंडर। एक्स क्यू मैंने लिखा है, हमने मान लिया कि जो भी पॉलिनोमियल है ना वो एक्स वाली होगी, इसलिए ओके ना, मोस्टली होती है। अभी इसका एग्जाम्पल भी देख ले 6 नंबर का। देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, 16 डिविडेंड है, 3 डिवाइजर है, तो हमें क्या मिला, 5 एज ए क्वोशंट मिला एंड 1 रिमाइंडर मिला। तो मैं लिख सकता हूँ 16 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1। अब चेक कर लो, 3 5 जा 15 प्लस 1 16 हो गया। तो मतलब ऐसे हम लिख सकते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो ये जस्ट एग्जाम्पल था, अगले वाला पेज का लास्ट जो पॉइंट था इसका। नाउ फॉर्मूला ऑफ एक्सपांशन। एक्सपांशन का मतलब समझिए, मैंने वहाँ बोला था कि ब्रैकेट रिमूव करने की प्रोसेस, लास्ट में आंसर लाओ तब ब्रैकेट नहीं रहेगा, ऐसी बात थी। तो देखो यही है, या तो मल्टीप्लीकेशन ऐसा मैंने बोला था। तो देखो सभी में देखो, पहले में देखो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई। तो मतलब समझ गए, हम एक्स प्लस वाई को खुद के ही साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो समझिए एक्सपांशन ही है। और ब्रैकेट नहीं है राइट साइड, और होगा तो भी निकल जाएगा कहीं पर। वैसे ही एक्स माइनस, ये सारी फॉर्मूला आप कहीं ना कहीं यूज़ करके आए हैं, मेरे ख्याल से वो नई नहीं होगी। ओके, तो फर्स्ट एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, सेकंड एक्स माइनस होल स्क्वायर, देन एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ओके, देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेफ्ट। फोर्थ फॉर्मूला है वो भी समझ लो आपके सामने है। और फिफ्थ जो फॉर्मूला है वो है तीनों का स्क्वायर, मतलब ट्राइनोमियल का स्क्वायर है। पहली और दूसरी है ना, फर्स्ट एंड सेकंड, वो बाइनोमियल का स्क्वायर है। यहाँ ट्राइनोमियल का स्क्वायर है, नंबर 5 की बात कर रहा हूँ। तो सामने भी देखो इसका एक्सपेंशन क्या है। ये सारी फॉर्मूला आपको मेमोराइज करनी है, लर्न करनी है, कैसे भी याद रखो, समझ के या तो कैसे भी। ऐसे समझना तो नहीं है, मैं सामने से बोलता हूँ, आपको याद ही रखना है। ओके, लेकिन यहाँ देखो प्लस ही है, माइनस वाली कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है जैसे फर्स्ट और सेकंड में है कि y अगर बीच में माइनस है तो दूसरी नई ही फॉर्मूला है। यहाँ ऐसा नहीं है, 5 नंबर में प्लस ही होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में माइनस है ना तो माइनस को कुछ अलग ले जाना पड़ेगा हमें, z की वैल्यू माइनस में बतानी पड़ेगी, लेकिन बीच में तो प्लस ही रखना पड़ेगा। ऐसे ही होल क्यूब की फॉर्मूला है बाइनोमियल 6 और 7, बाइनोमियल का क्यूब, x प्लस वाई देन x माइनस वाई। इसका भी देखो, आप बोले सामने ब्रैकेट तो है, आप बोलते हैं ब्रैकेट रिमूव हो रहा, लेकिन प्रोसेस पूरी करो तो ब्रैकेट निकल जाएगा। ओके, वो अगर 3xy x प्लस वाई करो ना तो 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे भी फॉर्मूला वो लोगों ने दी है, मैंने नहीं ली। एट लास्ट में ये थोड़ी अजीब सी फॉर्मूला है, आपको नहीं भी लगेगी, लेकिन हम इसकी बात नहीं करेंगे अभी। वो बहुत रेयर केस में यूज़ होती है, वैसे कोई फ्रिक्वेंटली इसका यूज़ नहीं हो रहा है। बाकी की आपको फर्स्ट 7 फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी। ओके, और कभी वो एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है ओनली फॉर्मूला, राइट डाउन फॉर्मूला, एक साइड आपको दी जाती है, राइट साइड आपको लिखनी पड़ती है। ओके, तो ये बहुत काम की है। अगर ये आपको नहीं आएगी ना तो मान लो ना सेकंड लेसन में बहुत सारा नहीं आएगा, और आगे भी बहुत प्रॉब्लम होगा। और ऐसा नहीं कि पॉलिनोमियल में हम जो सीखते हैं ना इसका यूज़ पॉलिनोमियल लेसन में ही होता है, ऐसा नहीं है, कहीं पर भी ज्योमेट्री में भी इसका यूज़ होता है। मतलब आपका एलजेब्रा में पॉलिनोमियल लेसन स्ट्रॉन्ग है ना तो मान लो आपका आधा मैथ स्ट्रॉन्ग है, समझ गए आप। तो आपको ये लेसन बहुत सीरियसली लेना है, ध्यान से पढ़ना है। ओके, और ओनली नॉट फॉर 9th बट also for further study, that is very important topic. Okay, so I hope you understand what I want to say. Okay, and very seriously you will do all sums and do homework also honestly. Okay, thank you.